Welcome friends. Welcome to the lecture series of wiring estimation and costing. So in this session we are going to discuss about the different wiring components and accessories that are being required whenever we design or whenever we are doing some kind of wiring of the domestic or for the industrial purpose. Okay, so let's understand what are the different components of this wiring and its accessories. So wiring materials, first of all we need to see what is wiring materials. तो वायरिंग मटेरियल्स जो है वो जनरली हमें पता है that electrical wire जो हमारा रहता है that is generally made of copper, aluminium and silver. तो ये तीन मटेरियल से जो है वो बना रहता है, या तो शायद वो कॉपर से बना होगा या तो एल्यूमिनियम. ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हम इसको यूज़ भी करते हैं. ठीक है, so the copper wire mostly are used in our domestic house wirings and for the industrial applications also. Aluminium wire is also used, so that is one kind of also a option for the generally wiring material. सो एज सिल्वर इज एक्सपेंसिव, वो हमें पता है. जो चांदी रहता है वो क्या रहता है, वो ज़्यादा कॉस्टली रहता है. मोस्टली कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन वायरिंग. तो ये सिल्वर जो है वो आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू इट्स हैवी प्राइस. ओके, सो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज कंडक्टिंग मटेरियल्स, second is insulating materials and the third is semiconductor materials. Okay, ये तीन जो टाइप्स है उसके अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. So let's understand for the conducting material. So conducting material first is copper. Copper is a good conductor of electricity. It is used in wiring materials in cables. Cables के अंदर wiring materials के अंदर ये use होता है. And it has a low resistance and is used for conduction of electricity at high, medium and low voltages. तीनों के लिए जो है ये कॉपर suitable मटेरियल है. मतलब अगर मेरे कोई एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज है that we consider for the high voltage or low voltage that is below the 230, these are low voltages, and medium voltage that are above 230 and मोर देन द थ्री फेज ओवरऑल दैट इज 440 वोल्ट, उससे भी अगर ज़्यादा है अप टू सम केवीज, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द मीडियम voltages line. Okay, so the copper is a good material for them to connect with it. Okay, the second type, that is aluminum. Aluminum is a lightweight and cheaper in comparison टू कॉपर. कॉपर की प्राइस अभी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है. सो एल्यूमिनियम इज़ अ गुड ऑप्शन टू रिप्लेस दी कॉपर. कॉपर की जगह पे आप एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हो. सो एल्यूमिनियम का क्या है, दैट इज़ लाइट इन वेट एंड ऑल्सो इन दी चीपर इन कंपैरिजन विद दी कॉपर. कॉपर के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें तो उसकी प्राइस कॉपर से बहुत ही कम है. So therefore this type of conducting materials is mostly used in electrical wiring. It is silvery white in color and it has a soft texture. It is often used in wiring and making cable. वायरिंग करने के लिए और केबल्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. So copper and aluminium both are very good at the wiring materials. Okay. So let's understand the insulating material. Insulating material जो है वो क्या है, that is are used for insulating purpose. ठीक है, दो चीज़ों, दो टर्मिनल्स को अगर हमें सेपरेट करना है then there is a requirement of insulator. So insulator तरीके से कौन काम कर सकता है, insulator कौन ऐसी inherent property प्रोवाइड करता है इंसुलेशन की, तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं. दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ करंट. ठीक है, इन्हें जनरली
इलेक्ट्रिसिटी का कोई अच्छा कंडक्टर नहीं बोला जाता. दीज कंडक्टर्स आर जस्ट द very bad and they cannot pass such electricity and all these things. So for example, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स हैं, मतलब जो कंडक्ट नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो वो है रबर, पेपर, माइका, वुड, ग्लास एंड कॉटन. तो ये सारे चीज़ें जो हमने यहाँ पे बताई, तो वो सारे क्या हैं? These are we can say the good insulator materials. Okay, good insulating materials. Now let's understand for the wiring accessories. So switch is the foremost requirement for the wiring. हमें पता है स्विच जो है वो हर जगह पे लगती है. स्विच के बिना we cannot start any applications or appliances विदाउट स्विच ऑनिंग दी स्विच. ठीक है, तो उसके क्या टाइप्स हैं? तो फर्स्ट इज सरफेस स्विच, फ्लश स्विच, सीलिंग स्विच, पुल स्विच, पुश बटन स्विच एंड बेड स्विच. तो ये सारे टाइप्स हैं जनरली. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स भी यहाँ पे दिखा रखे हैं. अलग अलग मटेरियल्स के जो रेगुलेटर्स हैं, स्विचेस हैं, पॉट्स रहते हैं. ठीक है, प्लग कनेक्शंस कैसे होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखा है. ये एक पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश की है. तो स्विचेस जो हैं वो 6 टाइप की हैं. तो ये स्विचेस को अभी हम देखते हैं कि कौन सी स्विचेस है, कैसी होती है, ऑल दी थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट दैट इज सरफेस स्विच. इट इज माउंटेड ऑन वुडन बोर्ड्स. ये इनको कहाँ पे माउंट किया जाता है? वुडन बोर्ड्स के ऊपर. एंड फिक्स्ड ऑन दी सरफेस ऑफ अ वॉल. सरफेस वॉल के ऊपर जो है वो माउंट किया जाता है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स की स्विचेस अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर. दैट इज वन वे स्विच. ये एक क्या है? ये वन वे स्विच है. दिस इज माई 2 वे स्विच. इसे हम 2 वे स्विच भी बोलते हैं. यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज माई इंटरमीडिएट स्विच. तो इंटरमीडिएट स्विच के अंदर इस तरीके से 3 टर्मिनल्स पीछे दिए गए होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट स्विच. नाउ इंटरमीडिएट स्विच हैज ऑल्सो 2 टाइप्स. So first is it is classified on wooden boards fixed on the surface of a wall. It is classified in 2 types. First is flush switch and second is bed switch. तो ये मेरा फ्लश स्विच है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है. जनरली फ्लश स्विच जो होता है दैट इज फॉर द डेकोरेटिव पर्पस ओनली. इनको डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है. जहाँ पे आपको शो चाहिए, डेकोरेशन दिखाना हो, वहाँ पे इस तरीके की जो स्विचेस है वो जनरली अडेप्ट की जाती हैं. एंड दिस इज माय बेड स्विच. ये जनरली ऐसी स्विचेस है जो हमारे रूम के अंदर नियर टू बेड के मतलब हमारे जो सोने की जगह है, बेड है, उसके नज़दीक लगाई जाती है टू स्विच ऑन द लाइट एंड स्विच ऑफ द लाइट. सो दे आर नॉट डेकोरेटिव, दे आर जस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. स्विच ऑन स्विच ऑफ का पर्पस जो है वो सर्व करने के लिए वहाँ पे यूज की गई है. सो दिस आर दी 2 different types of the intermediate switch. Now the next is the baton holders. So there are 2 types of baton holders. This is one kind of baton holder. ये आपने सभी ने देखा होगा. जनरली आप कहीं पे मार्केट के अंदर या कोई भी छोटी सी जो शॉप है, जो ठेला लेके खड़ा रहता है आदमी, कुछ सामान खाने की चीज़ें बेचने के लिए, फ्रूट्स या वगैरह, तो वहाँ पे वो शाम के टाइम पे इस तरीके का जो पेंडेंट होल्डर है वो यूज़ करता है, जिसके अंदर वो बल्ब को लगा के वो अपनी लाइट वहाँ पे ठेले पे लाइट लगा सकता है यूजिंग दिस पेंडेंट होल्डर. एंड दिस इज कॉल्ड एज दी बैटन होल्डर. ये जो है ये बैटन होल्डर है. इसके अंदर आप बल्ब लगाते हो जनरली. तो ये बैटन होल्डर को भी आप यूज़ करके इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स कैन बी डन फॉर द इल्यूमिनेशन पर्पस. ओके, तो इसे बोलते हैं बैटन होल्डर्स.
So this is one more essential thing for the wiring. The next is सीलिंग रोज, सॉकेट एंड मेन स्विच. तो सीलिंग रोज हम किसे बोलते हैं? सो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ टैपिंग टू द पेंडेंट लैंप होल्डर थ्रू द फ्लेक्सिबल वायर और अ कनेक्शन टू अ फ्लोरोसेंट ट्यूब. तो इस तरीके का शायद आपके घर में होगा भी और नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज काइंड ऑफ अ सीलिंग रोज. ये एक सीलिंग रोज है जिसके अंदर से हम वायरिंग कनेक्शंस जो है वो कर पाते हैं टू एनी फ्लोरोसेंट लैंप, मतलब कि ट्यूबलाइट के लिए या तो किसी भी लैंप होल्डर के लिए हम कनेक्शंस कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज दी सीलिंग रोज. इट इज हेल्पफुल इन दी वायरिंग फॉर द डोमेस्टिक पर्पज. द नेक्स्ट इज सॉकेट आउटलेट और वी कैन से दी प्लग. दिस इज दी वेरी पॉपुलर प्लग. ये आपने सभी ने देखा होगा. ये प्लग जनरली जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट कनेक्शंस. द सॉकेट आउटलेट हैज एन इंसुलेटेड बेस विद द मोल्डेड और सॉकेट बेस हैविंग 3 टर्मिनल स्लीव्स. ओके, द सॉकेट आउटलेट्स हैज एन इंसुलेटेड बेस with the molded और socket base having 3 terminal sleeves. ठीक है, तो इसके ऊपर 3 टर्मिनल स्लीव्स जो है वो यहाँ पे बनी रहती है. सो दिस इज द पॉपुलर थिंग, वी ऑल नो अबाउट दिस. दिस इज द मेन स्विच. इसको आप MCB या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसका फुल फॉर्म रहता है, तो इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB भी बोल सकते हैं और वी कैन से दी मेन स्विच. ये मेन स्विच का काम क्या होता है? टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल सर्किट अ मेन स्विच इज यूज्ड. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए मेन स्विच का यूज किया जाता है. थ्रू द मेन स्विच द पावर इन अ बिल्डिंग इज कंट्रोल्ड कंप्लीटली. एक बिल्डिंग के अंदर पूरा अगर पावर कंट्रोल करना है देन इट कैन बी डन विद द यूज ऑफ दिस मेन स्विच. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टूड दी different types of wiring materials, wiring accessories. So I hope all of you have learned something from this video and you will have get a good information from this video. So if you understood well, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.